आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और आगे हम जो है बढ़ेंगे। आइए इस घड़ी हम दुआ करेंगे और मैं निवेदन करूंगा खास करके भाई सुंदर सिंह जी अपना माइक ऑन कर लें और प्रार्थना में अगुवाई करें। सुंदर सिंह जी हैं। हेलो। ओके। ब्रदर साजन कपाली यू प्रे। आप प्रार्थना करें फिर हम लोग शुरू करेंगे। Okay. Father, we give thanks to you, Lord, to you in these times. Because of your grace and mercy, we just got such types of opportunity to learn about you, Jesus. That's why we are very grateful and thankful to you, Lord. And today, through our brother Paul, we are getting insight and more revelations about you, Lord, and help us and help him to teach us in a very well as well as very simple way to uh, understand very easily. And then we pray to you, Lord, that whatever we are going to learn from our brother Paul, and then we want to do something good for glorify your name. Thanks for being with us all the times and providing such a knowledge and wisdoms in our life. And just we pray for all of our team of us to know more about you. And we just pray in your name, Lord Jesus' name we pray. Amen. Amen. आमेन Amen. आमेन। Okay, praise the ओके। Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Today we continue the last part of how to get prepared for Jesus coming. और आज जो है हम आखिरी भाग को जो है पूरा करेंगे जिसमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कैसे तैयार रहें। So earlier to this, in the beginning, we have discussed regarding how we need to be safe first from our sin. और पहले हमने इस बात के बारे में वार्तालाप किया था कि हमें किस तरीके से अपने पापों से बचाए जाने की आवश्यकता है। The next one we have seen how to grow according to the Bible, growing in Christ. और अगली बात हमने देखी थी बाइबल के अनुसार हम किस तरीके से बढ़ोतरी करें, मसीह के अनुसार जो है किस तरीके से बढ़ें। And we have also seen in the third part where we have discussed or we have learned that repentance, the importance of repentance before having faith in God or believing Jesus और Christ. उसके बाद जो है हमने ये भी सीखा था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले किस तरीके से मन फिराव करें। So I will be giving you this slide where there are other words or verses in the Bible to prepare ourselves for the Christ coming. और यीशु मसीह के आगमन के लिए मैं बाइबल से कई एक आयतें उद्धृत करके आपको दूंगा और स्लाइड्स भी दे दूंगा ताकि आप जो है तैयार रह सकें, किस तरीके से हम तैयार रह सकते हैं उसके आगमन के लिए। Today I'm going to end this chapter of how to get prepared with two main topics. और दो मुख्य विषयों के साथ जो है मैं इस विषय को समाप्त करूंगा कि हम किस तरीके से तैयार रहें, तैयार कैसे रहें। And I will be also giving the full PowerPoint slides and also the notes in our group. और हमारे ग्रुप के अंदर पूरे जो है नोट्स हैं और पावरफुल पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो भी आपको दे दी जाएंगी। So what are the two things which we are going to learn today? और आज कौन सी दो बातें हैं जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं? Jesus' viewpoint of who will not rapture or who will not go into the kingdom of heaven. यीशु मसीह के दृष्टिकोण के आधार पर कौन लोग हैं जो स्वर्ग में उठाए नहीं जाएंगे और कौन हैं जो उठाए जाएंगे। Jesus is going to be the judge, so he knows who will go, who will not go. यीशु मसीह न्यायी होने जा रहा है या न्यायी है, इसीलिए जो है वो जानता है कि कौन जाएंगे उसके साथ, कौन नहीं जाएंगे। So the next topic will be how do I go inside? और अगला जो विषय है वो ये है कि मैं कैसे उसमें अंदर जा सकता हूँ। According to the Bible, we will see Bi- some of the characters in the first coming of Jesus, of those who see Jesus as a baby and those who wanted to see Jesus as a baby but didn't see him. और जो कुछ जो है चरित्रों को हम देखेंगे या कुछ ऐसे किरदारों को हम देखेंगे
बाइबल के अंदर जो यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर जब वो बालक बन करके इस संसार के अंदर आए, तो कौन लोग थे जो उसे देखना चाहते थे और किन्होंने उसे देखा, और ऐसे कौन लोग थे जो उसे देखना तो चाहते थे परंतु देख नहीं पाए। Let's see the warning of Jesus first of who will not go in to the kingdom of heaven. और यीशु मसीह की चेतावनी के आधार पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश नहीं करेंगे। All right, that means who will not ठीक है, rapture. इसका मतलब है कौन मेघारोहण में नहीं जाएंगे। Okay, number ठीक one, है। Jesus or the judge told us and warned that many Christians will never rapture. और यीशु मसीह जो कि न्यायी है, वो हमें चेतावनी देता है और कहता है कि बहुत सारे मसीह लोग नहीं जा पाएंगे। It's not what I am telling you, but it is Jesus who is telling us. और ये मैं नहीं हूँ जो आपसे ये बात कह रहा हूँ, परंतु ये बाइबल है जो आपसे, यीशु मसीह है जो आपसे ये बात कहता है। Okay, number one is Matthew chapter 8 verse 11 and 12. और मत्ती 8 उसकी 11 और 12वीं आयत पहली बात बताती है। It is the story during the time of Jesus when Jesus saw the faith of the centurion and also the faith of the Israelite people. और ये प्रभु यीशु मसीह है जब इज़राइलियों के विश्वास और जो है उस सूबेदार के विश्वास को देखता है, आंकता है। I'm sure you know that the centurion came to Jesus to ask Jesus to come and heal the servant. और मुझे मालूम है कि आपको पता होगा कि जहाँ पर एक सूबेदार जो है आकर के यीशु मसीह से विनती या निवेदन करता है कि उसके दास को चंगा करे। And when Jesus want to follow the centurion and go, और the जब प्रभु centurion यीशु मसीह sorry, या the centurion told him that you don't need to come under my roof because I am a person who is under the authority. If I say के go, पीछे he will चलता है। go. Come, he will come. और तब प्रभु यीशु मसीह से जो है सूबेदार इस प्रकार से कहता है कि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अधिकार का प्रयोग करता हूँ, और जिस व्यक्ति से कहता हूँ कि तू यहाँ आ तो वो यहाँ आता है, उससे कहता हूँ कि तू जा तो वो जाता है। Jesus saw the faith of the centurion and he said that he was amazed or he was surprised with his faith of a non-believer. और प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार के विश्वास को देख करके अचंभित हो गए और इज़राइल की तरफ फिर करके कहने लगे कि ऐसा जो विश्वास है मैंने इज़राइल के अंदर भी नहीं पाया जो अन्य जाति में या अविश्वासी में पाया जाता है। He believed that if Jesus say one word, his servant will be healed. और वो विश्वास कर लेता है कि अगर वो अपने एक शब्द को भी कह देगा प्रभु यीशु मसीह तो उसका जो दास है वो चंगा हो जाएगा। Next he turned to the Israel people and he said, I have not found any faith in Israel like this. और तब इज़राइल की तरफ घूम करके प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। After seeing the centurion's faith, great faith, and the people who are following him who has a less faith or no faith, Jesus made this statement. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार का विश्वास देखा और एक बड़ी भीड़ जो उसके पीछे चल रही थी उनके अंदर कम या बिल्कुल नाम मात्र के बराबर विश्वास देखा, तब ये जो है उसने परिभाषित की। Jesus said to everybody in the crowd there, and I say to you that many will come from the east and west and sit with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom, I have marked there, the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. और तब प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से कई लोग आकर के अब्राहम के साथ परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांत पीसना है। Who are the sons of the kingdom? अब सवाल ये उठता है कि राज्य के संतान कौन हैं? In my previous class, I said Jesus came to establish his kingdom on this earth. और जैसे कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपसे कहा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने के लिए इस संसार में आए। So he came, he died, and he went back, and then he has already established the kingdom of heaven or the kingdom of God. और वो आए, मारे गए, गाड़े गए, उसके बाद वो स्वर्ग में फिर वापस चले गए और उन्होंने जो है परमेश्वर के राज्य
या फिर जो है स्वर्ग के राज्य को स्थापित कर दिया। After that, those who believe the gospel will be the children of God. और उसके पश्चात जितने सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं या कहलाते हैं। You and I are the children of God or the sons of the kingdom. और मैं और आप परमेश्वर के संतान या फिर राज्य की संतान कहलाते हैं इस संसार में। But when Jesus come, will he find और any such kind of faith like a centurion, or और जब will he प्रभु यीशु find मसीह the faith like a Israelite people? और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे तो क्या वो उस सुबेदार के समान विश्वास को इस संसार में पाएंगे या फिर इजरायलियों के समान संसार में विश्वास को पाएंगे। So how is our faith? तो सवाल यह है कि हमारा जो विश्वास है वो कैसा है। As I have told you, the first our faith should be in the gospel by believing in our heart and confessing with our mouth. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो विश्वास है वो सुसमाचार पर होना चाहिए कि अपने मुंह से अंगीकार करना और जो हृदय के अंदर विश्वास करना के द्वारा। Then in all our doing as in Christ, we have to walk according to the Bible and having our faith, trusting God in everything we do. और तब हम जो कुछ अपने कार्यों में करते हैं बाइबल के अनुसार करें और जो कुछ हम कहते हैं वो परमेश्वर पर विश्वास रखने के माध्यम से हम करें या कहें। Jesus said, "Those who protect their faith till the end shall be safe." और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। That means there are some in between their life of Christian life, they will leave their faith in trusting other God and worldly things. इसका अर्थ यह है कि अपने मसीह जीवन के अंतराल में बहुत सारे लोग जो है डावाडोल हो सकते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय दूसरी वस्तुओं या चीज़ों पर विश्वास या भरोसा कर सकते हैं जिससे वे अपने आप को समस्या में डाल लेंगे। The sons of the kingdom are Christians now living, and they have to take care of their faith. If they don't take care, they will also be thrown into the hell. और राज्य की संतान मसीह लोग कहलाते हैं, उन्हें अपने विश्वास की रखवाली करने की आवश्यकता है। यदि वे अपने विश्वास की रखवाली नहीं करेंगे तो वे नरक में डाल दिए जाएंगे वे भी। So number one, faith is very important. तो पहली बात यह है कि विश्वास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Number two, दूसरी बात Matthew chapter 7 verse 21 to 23. मत्ती 7 उसकी 22 और 23वीं आयत कहती है। Jesus was talking to three types of Christians. और प्रभु यीशु मसीह 3 प्रकार के मसीह लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं। Shall we read that verse before we continue? और क्या हम उस आयत को पढ़ेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें? Pastor, can you just read it in Hindi alone? Matthew chapter 7 verse 21 to 23. ओके। और आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 21 से लेकर के 23 और यहाँ इस प्रकार से है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल करके कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Here you can see three types of Christians here. यहाँ पर आप 3 प्रकार के मसीह लोगों को देख सकते हैं। They are not ordinary Christian, but they are Christians with the gift of the Holy Spirit. और वे कोई साधारण मसीह लोग नहीं हैं परंतु ये वे मसीह लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा के वरदान हैं। How do you know whether they are Christian or not? और कैसे आप जानेंगे कि वो मसीह हैं या नहीं हैं? Number one point is they call Jesus as the Lord, Lord. और सबसे पहली बात यह है कि वे यीशु को प्रभु प्रभु कह करके बुलाते हैं। Number two, they prophesied and they cast out demons and they did many miracle or wonderful work. और दूसरी बात यह है कि वे भविष्यवाणियां करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं और बड़े अचंभे के काम भी करते हैं। This Jesus is talking about the judgment time.
और यीशु मसीह जो है ये इनके बारे में जब वो बातचीत करता है तो वो न्याय के समय की बातचीत करता है। Jesus is telling that not everybody, that means there are many, all the Christians are calling him Lord, not everybody will enter the kingdom of heaven. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं हर एक, परंतु हर एक जो हे प्रभु कहता है उससे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। But he who does the will of my Father which is in heaven. परंतु कहता है वो जो पिता की इच्छा को पूरा करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। Every Christian who are called, they have a purpose in God's kingdom to complete the Father's will. हर एक मसीही जो परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया है उनको एक उद्देश्य दिया गया है ताकि वे पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके दिखाएं। If you do not know your calling or your election, then you are easily will fall into sin. अगर आप अपने चुनाव को या अपने बुलाहट को नहीं पहचानते हैं तो बड़ी आसानी से आप पाप में पड़ सकते हैं। Let me explain who are these people. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग आखिरकार हैं कौन। These people are people who are born again and they are growing in Christ very well. ये वे लोग हैं जो नया जन्म पाए हुए हैं और मसीह में अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। And they ask for the gift of the Holy Spirit for the ministry that they are going to do. और उन्होंने सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों की मांग की और उन्हें मिले। The Holy Spirit give them the gift of prophesying, casting out demon and doing miracle work. और पवित्र आत्मा ने उन्हें जो है वरदान दिया ताकि वे भविष्यवाणी कर सके, दुष्ट आत्मा को निकाल सके, अचंभे के काम कर सके। So by me doing the ministry of God, they became very famous. They have a lot of richness in their life. और परमेश्वर की सेवा करने के माध्यम से वे बड़े प्रसिद्ध होते चले गए और धनाढ्य से बढ़ते चले गए और बहुत ज्यादा उनके पास ऐशोआराम सब वस्तुएं आती चली गई। Pride came into them. और तब उनके जीवन के अंदर घमंड आ गया। Now they think it is not God who is working through them, it is they are working it. और अब वे ये सोचने लग जाते हैं कि ये परमेश्वर नहीं जो उनके माध्यम से काम करता है, परंतु ये वे स्वयं हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। Meaning they don't sit hours at the Lord's feet in prayer and fasting. और इसका अर्थ ये होता है कि वे अब परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में समय नहीं बिताते, ना प्रार्थना करते हैं, ना जो है उपवास में बैठते हैं। They are people who thinks they know everything. और ये ऐसे लोग हो जाते हैं जिन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि वे वो लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं। If you and I sit at the Lord's feet, God will direct us where to go and where not to go. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके कदमों पर बैठते हैं तब वो हमें दिशा निर्देशन देता है कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। That is why I always say you must know your calling and your election. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने चुनाव को और अपनी बुलाहट को पहचानें। 2 Peter chapter 1 verse 10 I think. Yes, verse 10. दूसरा पत्रस अध्याय 1 और उसकी 10वीं आयत। Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. और यहाँ इस प्रकार से कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। So you must know, if you have grown into the Lord, you must know what is your calling that God has called you to do. और आपको अपनी बुलाहट के बारे में पता होना चाहिए जब आप सेवा करते हैं कि आप किस बात के लिए बुलाए गए हैं। So that's the reason that these people didn't do God's will. So Jesus in the judgment day, he said, I don't know you. और ये वे लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन काल में पूरा नहीं किया, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने बैठेंगे वो कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। And he said, depart from me, ye that work iniquities. और वो कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। What is the meaning of iniquities work? अब असल में अर्थ ये है, बात ये है कि ये जो
कुकर्म है वो क्या है, इसका अर्थ क्या है? It is a type of sin. ये एक प्रकार का पाप है जिसे कुकर्म कहा जाता है। We got 10 commandments. और 10 आज्ञाएं हमारे पास है मानने के लिए। Those who break that commandment are transgressing the commandment. जो कोई उन 10 आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ता है वो आज्ञाओं को तोड़ने का अपराधी ठहरता है। That is also a sin. ये भी एक पाप है। So iniquities means you are planning things for your life instead of what God wants you to do. इसका अर्थ ये होता है जिसे हम अपराध कहते हैं या कुकर्म कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के लिए अपनी इच्छा के अनुसार योजनाओं को बनाते हैं बजाय इसके कि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दें। For example, these people do a lot of miracles. और उदाहरण के तौर पर ये जो लोग होते हैं ये बड़े बड़े चमत्कार करते हैं They take pride for themselves and not giving glory to God. और वे जो है अपने लिए बहुत सारा घमंड इकट्ठा कर लेते हैं परंतु महिमा परमेश्वर को नहीं देते हैं। They become very famous. They don't give glory to God, but they think they are the one who are famous. और वे इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि जग उन्हें जानने लग जाता है और वे सारा आदर महिमा स्वयं लेने का चेष्टा या प्रयत्न करते हैं परंतु महिमा परमेश्वर को नहीं देते हैं। So God tell them that you must go to this place. और परमेश्वर उनको बताता है कि तुम्हें इस स्थान पर जाना है, To a village. गांव के अंदर जाना है। But they don't want to go to the village because you cannot become famous or you won't get anything there, any money or any other things. परंतु वे गांव में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा, ना ही वहां पर इतनी प्रसिद्धि मिलेगी, इसलिए वहां नहीं जाना चाहते हैं। But they want to go to town or city where they can become famous and receive a lot of love offering. परंतु बड़े बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं जहां पर बहुत सारी भेंटें चढ़ावे आराम से मिल सके और प्रसिद्धि भी बड़ी आराम से हासिल हो सके। They have not done the will of the Lord. उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण नहीं किया। It's like Jonah asking to go one place, he go to the another place. ये बिल्कुल योना के समान होते हैं। जब परमेश्वर ने योना से कहा कि फलानी जगह पर जा, That is called परंतु उस iniquities. जगह पर जाने के बजाय योना दूसरी जगह पर चला गया That is called iniquities. और इसी को कुकर्म कहते हैं। Okay, that means you ठीक have है। wrong attitude or wicked thinking. और इसका मतलब है कि आपके पास कुछ बुरा करने का ऐसा स्वभाव होता है जिसमें आप योजनाएं बना करके काम करते हैं, Jesus said, "I उसे never कुकर्म knew कहा you." जाता है। यीशु मसीह ऐसे लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। I will let you know why Jesus said, "I never knew you" at the in the next place. I mean, in another 3 places, he says the same thing. और यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ये मैं आपको अगले 3 स्थानों पर बताऊंगा जो So- वहां पर इसी बात का जिक्र किया गया है। So those wicked Christians who have the gift of the Holy Spirit but did not do the will of God, they also cannot rapture. तो ये जो कुकर्म करने वाले या दुष्ट मसीह लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान है, चमत्कार किए परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं किया, वे मेघारोहण में या गुप्त आगमन में प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। So now you will be very happy that I don't have the gift of God. तो अब आप खुश हो गए होंगे कि मेरे पास तो परमेश्वर का कोई गिफ्ट नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई वरदान नहीं है। But next we are coming to that. लेकिन अगली बात में हम आ रहे हैं। Luke chapter 13 verse 23 to 27. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 27 से लेकर के 29 तक। So you can see in Luke chapter 13 verse 23 to 27. 23 से लेकर के 27 तक, लूका 13 23 से 27। Just a minute. Huh? Okay, if you have your Bible, turn to that. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप अपनी बाइबल निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं। All right. It is actually Jesus is talking about the narrow way. और यीशु मसीह यहाँ पर जो है संकीर्ण फाटक से प्रवेश करने के बारे में जिक्र करते हैं। Where Jesus was going to the city and village teaching and journeying towards Jerusalem, और जब प्रभु यीशु मसीह गाँव में, नगरों में सुसमाचार प्रचार करते हुए यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, one of the disciples came and asked Jesus and said, "Lord, are there only few who are safe?"
तो एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आकर के पूछने लगा, प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? And Jesus said to them, all the people there, और तब प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोग वहां मौजूद थे उन सब से ये बात कही, strive to enter through the narrow gate, for many, I say, will seek to enter but and will not be able to. और तब यीशु मसीह ने उनसे इस प्रकार से कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। So he said, when the master of the house has shut the door, then those who are outside will start to knock at the door, saying, Lord, Lord, open for us. और लिखा है कि तब जो घर का स्वामी है द्वार बंद कर चुका होगा, उसके बाद लोग आकर के कहेंगे, हे प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोल दे। The Lord here is Jesus Christ. When he has already taken people up and he closed the door, then people who are outside, Christian who are outside, will be calling, Lord, Lord, open the door for us. और जब प्रभु यीशु मसीह आकर के उन मसीह लोगों को जिनको ले जाना है ले जाएगा, उसके बाद जो नीचे बचे रह जाएंगे, जब द्वार बंद हो चुका होगा, फिर वे चिल्ला करके कहेंगे, प्रभु हमें भी ले ले, प्रभु हमें भी ले ले, हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे। And Jesus say, he will answer, I don't know you and where are you from? तब प्रभु यीशु मसीह उनसे इस प्रकार से कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम कहाँ के हो। Then the people outside, they will tell to Jesus, we ate and drink in your presence and you taught in our streets. तब वे इस प्रकार से कहेंगे कि हमने तेरी उपस्थिति में खाया पिया और तूने हमारी गली चौपारों में प्रचार किया। Do you know what that means? क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? Meaning, there are a lot of अर्थ है, Christians who are coming and taking the Holy Communion. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आकर के प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं। We ate and drink in your presence, meaning we are coming and taking the Holy Communion, the body of Christ and the blood of Jesus Christ. और हमने तेरी उपस्थिति में हमने तेरे सामने खाया पिया, इसका अर्थ यह है कि प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु की मेज में हिस्सा लिया कलीसिया में। Ordinary church members. जो साधारण कलीसिया के साधारण विश्वासी होते These हैं, ये वे people लोग don't हैं। have any gift. इनके पास किसी प्रकार का कोई वरदान नहीं होता। But do you know what Jesus said? Tell to them, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? I don't know you. वे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता And where are you from? और तुम कहाँ के हो। Is Jesus cheating? क्या यीशु मसीह धोखा दे रहा है? Or Jesus telling a lie? क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहा है? Jesus know everybody. यीशु मसीह तो सबको जानता है। They came to take the Holy Communion and he knows them. और जब वे आकर के प्रभु की मेज में हिस्सा लेते थे तब वो नहीं And जानता he था। taught in the street. That means every time in the church, oh, God spoke to me. People tell like that. और जो कलीसियाएं जो गलियारों में हैं, जब वहाँ प्रचार किया जाता है, तब जो है क्या नाम है, वे उसमें हिस्सा लेते हैं। How तो come Jesus say, I उसको don't know जानता you? है। तो यीशु मसीह कैसे कह सकता है कि मैं And the तुम्हें नहीं next sentence जानता? he said, depart from me, all you workers of iniquities. और तब अगली जो बात है वो इस प्रकार से कहता है प्रभु यीशु मसीह, मुझसे दूर हो जाओ हे सब अधर्म के चाहने वाले। These people are also workers of iniquities. That means they are bad thought. और ये जो लोग हैं ये भी जो है बुराई के, अधर्म के, कुकर्म के चाहने वाले हैं। इसका मतलब है कि बुरे विचार उनके मनों में रहते हैं। Ordinary church members who like to gossip, जो साधारण कलीसिया के विश्वासी होते हैं वे कलीसिया में आकर के मजाक करना या Having फिर जो है secret बातचीत करना sins. ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर कोई गुप्त पाप अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं जो they पता don't नहीं want to होता। obey the word and follow the word. और परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना नहीं चाहते हैं, उसे मानना नहीं चाहते हैं। They have two different life, one life in the church and one life outside in the world or in their house. और उनकी जो है दोहरा जीवन होता है, एक कलीसिया के अंदर जीवन अलग है और बाहर जब निकल जाते हैं कलीसिया से तो जीवन कुछ अलग होता है संसार के अंदर। So these are the people who Jesus say, I don't know, and they are all workers of iniquities. और यीशु मसीह ऐसे लोगों से इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हे कुकर्म के चाहने वालों या करने वालों। People who ate and drank और the Holy वे Communion, लोग जिन्होंने प्रभु की मेज में हिस्सा लिया, खाया पिया, who heard the message in the pulpit where God was preaching or teaching us a lot of things. और उन्होंने पुलपिट से संदेश को कलीसिया में सुना, जाना, सीखा But जब Jesus said, प्रचार I किया don't जा know रहा you. था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
Because he said, these people are the workers of iniquities. क्योंकि वो इस प्रकार से कहता है कि ये अधर्म के चाहने वाले हैं या कुकर्म करने वाले हैं। This is the second place where Jesus said, I don't know you. और ये दूसरा स्थान है जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। So this person also will not go into heaven or rapture when Jesus comes. तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं वे ना तो मेघारोहण में जाएंगे और ना ही प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। Ordinary church members. ये साधारण कलीसिया के साधारण से विश्वासी होते So हैं। I have already told you three. One is the children of, those Christians who didn't have faith, proper faith. और मैंने आपको तीन जो है कैटेगरी बता दी हैं, तीन जो वर्गीकरण है मैंने आपको बता दिए हैं। पहले वे हैं जिनके अंदर विश्वास नहीं है। Then the others are those Christians who have the gift of the Holy Spirit but didn't do the will of God. और दूसरे मसीह वे हैं, उनका प्रकार यह है कि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और कई सारे वरदान उनके पास हैं, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग। Then there are Christians who take the Holy Communion and who heard a lot of message in the church, but they are also they are people who are workers of iniquities, so they are left behind also. और तीसरे प्रकार के साधारण से वे लोग हैं जो आम कलीसियाओं में जाते हैं परंतु अपने जीवन को कभी बदलते नहीं हैं और बुराई करने में उनके मन लगे रहते हैं, संदेश को सुनते रहते हैं सालों साल और प्रभु की मेज में हिस्सा लेते रहते हैं साधारण कलीसिया बन करके। So the next one, number 4, is Matthew chapter 25 verse 1 to 13. और अगला जो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 This one में हम everybody देखते knows. हैं कि ये चौथे प्रकार के लोग हैं और इसके बारे में सब लोग जानते हैं। This one everybody know regarding the parable of the 10 virgins. और इस जो है दृष्टांत के विषय में सभी लोग जानते हैं जो 10 कुआरियों का दृष्टांत है। This is a reminder to get ready for Jesus coming. और ये एक प्रकार का जो है याद दिलवाने वाली बात है कि हर एक मसीह जो है इस बात को स्मरण कर ले कि यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत नजदीक This है। 10 virgin is referring to all Christians. ये जो 10 कुआरियां हैं वो सारे मसीह जगत को दर्शाती हैं। So Jesus told this parable regarding how to get ready for Jesus coming. और यहाँ पर इस दृष्टांत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि यीशु के आगमन के लिए किस तरीके से तैयार रहें। To all the Christians in the world. जितने भी मसीह लोग हैं इस संसार के अंदर उन सबको जो है यीशु मसीह ये हिदायत या चेतावनी देते हैं। But in that parable you see there are 5 wise Christians and there are 5 foolish Christians. लेकिन इस दृष्टांत के अंतर्गत आप पाएंगे कि 5 मूर्ख जो है मसीह हैं और 5 समझदार मसीह लोग हैं, बुद्धिमान मसीह लोग हैं। So what's the difference between the wise Christian and the foolish Christian? तो अब इन दोनों के मध्य में क्या जो है विभिन्नता पाई जाती है कि जो मूर्ख हैं उनमें और जो बुद्धिमान हैं उनमें क्या अंतर है? The main difference is that the wise Christian have extra oil, the foolish Christian do not have extra oil. जो बुद्धिमान मसीह लोग हैं उनके पास एक्स्ट्रा जो है तेल है पवित्र आत्मा का और जो मूर्ख हैं उनके पास एक्स्ट्रा नहीं है, What is the meaning ज्यादा of नहीं है। oil in the Bible? बाइबल के अंदर जो तेल है वो किस बात को दर्शाता है? Oil is referring to the Holy Spirit. और जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। If you read in Ephesians chapter 5 verse 15 to 18, अगर आप इफिसियों की पत्री अध्याय 5:15 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे, we need to refill or fill with the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा से फिर से भरने या भर जाने की आवश्यकता है। When a person believes the gospel, God कोई gives him व्यक्ति the Spirit of God, which is the Holy Spirit. सुसमाचार पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है The जो Holy कि Spirit परमेश्वर is का आत्मा है। always the Emmanuel, God with us. और पवित्र आत्मा वो है अर्थात इमानुएल जो सदा हमारे साथ रहता है। But we need to fill with the Holy Spirit always. लेकिन पवित्र आत्मा से हम सबको हमेशा भरे रहने की जरूरत पड़ती है। How do we fill with the Holy Spirit? अब पवित्र आत्मा से कैसे भरे रहेंगे? Do you know that now you are being filled with the Holy Spirit by hearing the word of God? क्या आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब पवित्र आत्मा से भरे जा रहे होते हैं?
when we read the Bible, when we fast, we are being filled with the Holy Spirit. जब हम उपवास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तब हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाते हैं। When we go to church, when we have fellowship among Christians, we are being filled with the Holy Spirit. जब हम कलीसिया में जाते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा से भरे जा रहे होते हैं। So as long as whenever we live in Christ and doing what the Bible say, we are actually being filled with the Holy Spirit. और जब तक हम जो बाइबल बताती है उसे करते रहते हैं, तब तक हम पवित्र आत्मा से निरंतर भरते जाते रहते हैं। Then when we go out into our worldly life, परंतु जब हम अपने संसारिक जीवन में चले जाते हैं, if you go into your working life, your school life, and your family life, if you are not thinking about God or praising God, the Holy Spirit will go slowly down. Your thinking about God will go down and down. और जब आप अपने व्यवहारिक कार्यकलापों में चले जाते हैं या अपने कामकाज पर चले जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, दुकान मकान के कामों में चले जाते हैं, या इधर जो भी आप संसारिक कामों को करते हैं, तो पवित्र आत्मा का जो लेवल है, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचना विचारना बंद कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा का जो लेवल है, स्तर है, वो धीरे धीरे नीचे चलता चला जाता है। When you go and do ministry of the Lord, the Holy Spirit will go down and down. और जब आप जाकर के बाहर सेवा करते हैं, लोगों में सुसमाचार प्रचार करते हैं, किसी प्रकार की सेवा करते हैं जो परमेश्वर से संबंधित है, तब भी पवित्र आत्मा का जो लेवल है वो घटता चला जाता है। It is just like a car or two-wheeler where you pour the petrol inside, and after as you travel, it will go less and less. ये बिल्कुल कार या जो है मोटर बाइक के समान है, जब उसमें आप ईंधन को डाल देते हैं और जैसे ही आप यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो ईंधन जो है वो कम होता चला जाता है। Even as I teach now to you all are being filled, but I am being going down and down. और जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप तो भरे जा रहे हैं, परंतु मुझ में ये ईंधन घटता चला जा रहा है जो पवित्र आत्मा का It है। is the impartation of the Holy Spirit. और इसको पवित्र आत्मा का स्थानीकरण कहते हैं, या पवित्र आत्मा का एक से दूसरे को देना कहते हैं। We need to recharge it. और हमें इसे रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। Even in the life of Jesus, you saw that Jesus, before he was born of the Spirit. और यीशु मसीह के जीवन में भी आप देखते हैं कि जब वो पैदा हुआ, तो पैदा होने से पहले जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ पैदा हुआ। When he wanted to start his ministry, when he was baptized, the Holy Spirit came upon him like a dove. और जब वो सेवकाई को शुरू करना चाहता था, बपतिस्मा लेकर के जब ऊपर आया, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई उतरा। The words in the Bible say he was full of the Spirit before he went into the wilderness to be tempted by the devil. और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जंगल में परीक्षा किए जाने से पूर्व वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। He was ready for the ministry because he was full of the Spirit. Now the devil come and tempt also, he won't fall. और इतना तैयार था कि अगर अब शत्रु आकर के उसकी परीक्षा भी करे तो वो गिरेगा नहीं, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के पवित्र आत्मा के सिखाने के द्वारा जो है वो जंगल में गया। Then every time when Jesus do the ministry at night or different time, he will go up to the hill to pray. और जब वो सेवकाई को कर चुका होता था, तो रात्रि को किसी पर्वत पर या किसी बाग में जाकर के वो प्रार्थना अवश्य किया करता था। He is God. Why does he need to pray? वो परमेश्वर था, उसे प्रार्थना की क्या आवश्यकता He थी? need to refill or to be filled by the Spirit again, asking the Father. और उसे जो है बार बार जब सेवकाई कर चुका होता था, तो पवित्र आत्मा से भर जाने की आवश्यकता पड़ती थी और वो पिता से मांग करता था। When he came down to do the ministry, you remember the woman who touched the robe or touched the Jesus Christ, and the Spirit left him. और क्या आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में होकर के चल रहा था, तो एक स्त्री ने आकर के उसके पोशाक के कोने को छू लिया। जैसे ही छुआ तो यीशु मसीह सामर्थ्य निकली, लिखा है। Why does the Spirit of Jesus left to the woman to heal the woman? और यीशु मसीह में से आत्मा निकल करके स्त्री को चंगा करने के लिए गया, सामर्थ्य चंगा करने के लिए गई। क्यों? This is to let you know that that Spirit is the one which is healing her, and Jesus has to renew his Holy Spirit later. और आपको इस बात को जानने की आवश्यकता पड़ेगी कि पवित्र आत्मा है जो चंगा करता है, और अब यीशु मसीह को दोबारा पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने की आवश्यकता पड़ेगी। If you and I want to be filled with the Holy Spirit, we must always meditate the word of the Lord, and even whatever we do, we must praise God
and read your Bible and keep yourself in Christ. और अगर आप उससे भरे रहना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन से करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। So this parable of the 10 virgin is about the 5 virgin without the Holy Spirit is represented by the false believers in Christian. और ये जो 5 मूर्ख कुँवारियाँ हैं, वे मसीह जगत के अंदर जो पवित्र आत्मा से खाली हैं, उनको दर्शाती हैं, जो जो झूठे मसीह हैं, उनको दर्शाती हैं। They would have the Holy Spirit earlier, but now they have finished with the Holy Spirit. That means they have moved on into a sinful life. और हो सकता है कि पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी तब पवित्र आत्मा उनके अंदर था, पवित्र आत्मा में काफ़ी उन्होंने काम किया, परंतु अब जब अंत आ चुका है तब उनके जीवन से पवित्र आत्मा जा चुका है, अपने जो है पापी जीवन में फिर दोबारा वे लौट चुके हैं। Here also Jesus said, "Surely I say to you, I don't know you," to the 5 foolish virgin. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन 5 मूर्ख कुँवारियों से इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Why Jesus said like that? क्यों यीशु मसीह ऐसा कहते हैं? Because they do not have a personal relationship with Him. क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ या यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है। Now I'll go on to answer your question of why did Jesus say, "I don't know you." और अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि यीशु मसीह ने उन सब से ये क्यों कहा कि वो उन्हें नहीं जानता। Jesus is omnipotent, omniscient, and omnipresent. और जो प्रभु यीशु मसीह है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्व बुद्धिमान है। He knows everything. और वो सब कुछ जानता है। Even when he was walking, he knew that Zacchaeus went up the tree, and he knew Zacchaeus by the name and asked him to come down to go to his house. यहाँ तक कितना जानता है कि जब जक्कैयस उसे देखना चाहता था और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तब उसने उसका नाम लेकर के पुकारा और कहा, जक्कई, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। Many verses in the Bible it says that Jesus knew their thought. और बाइबल के अंदर ऐसी कई सारी आयतें हैं जो इस प्रकार से बखान करती हैं कि प्रभु उनके मन में क्या चल रहा था ये भी जानता था। If Jesus knew their thought and knew everything, why do Jesus say to these 3 people here which we have seen that he does not know them? और जब यीशु मसीह सब बातों को जानने वाला है, यहाँ तक कि मन के अंदर चल रहे विचारों को भी जानता है, तब यीशु मसीह इन लोगों से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता? The answer is very simple. तो अर्थ इसका जो जवाब है वो बिल्कुल साधारण सा है। Don't use your mind. अपने दिमाग का प्रयोग करने की चेष्टा ना करें। Only Bible interprets Bible. ध्यान रखें कि बाइबल का अनुवाद करती है। If you see in the Bible, you will अगर आप notice the word "new." अगर आप बाइबल में देखेंगे तो आपने इस शब्द को जो है देखा होगा, जानना। You search for that word, you will see in the Old Testament and also in the New Testament. और आप जब इस शब्द की जांच पड़ताल करेंगे तब आप पाएंगे पुराने नियम में या फिर नए नियम में What it means? इसका अर्थ क्या है। You see? New means you know. और जानना का अर्थ होता है व्यक्तिगत रूप से रूबरू होना। I give you an example. एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। If you remember the time of the creation, और अगर आपको याद होगा जब सृष्टि का जो समय था जब सृष्टि की जा रही थी, God created heaven and earth, and after that came, Adam and Eve. और परमेश्वर ने आसमान और जमीन की रचना की, उसके बाद सारी बातों को बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं आदम और हवा के समय में, After they were chased out of the Garden of Eden, they had 2 children, Cain and Abel. और जब अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए उसके बाद उनके 2 बालक थे, हाबिल और कैन। Cain killed Abel. और कैन ने हाबिल को मार दिया। After that, in the Bible, it says that Adam knew Eve and beget Seth. तब वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब हम हिंदी अनुवाद करते तो वहाँ लिखा है आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, परंतु अंग्रेजी जो अनुवाद है वो कुछ इस प्रकार से है कि आदम जो है उसने हवा को फिर से जाना, यानी कि उससे रूबरू हुआ। The word there is new.
और वहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में, उसको न्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जानना का प्रयोग किया गया है। Now Adam knows Eve, and then they got a child named Seth. और आदम ने जब अपनी पत्नी को जाना, यानी कि उसके पास गया, तब जो है उनसे एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम शेत रखा गया। Now I want to ask a question. अब आपसे एक सवाल करता हूँ, Why all this while Adam don't know who is Eve? तो ये पिछले जब से आदम चला आ रहा था, तब से अब तक क्या आदम अभी तक अपनी पत्नी को जानता नहीं था? He knew Eve, then only Cain was born. Abel was और born. उसने जो है अपनी पत्नी को जाना, उससे रूबरू हुआ, तभी जो है कैन पैदा हुआ, उसके बाद हाबिल पैदा हुआ। Now in a special way, in the Bible it is written that Adam knew Eve and Seth was born. अब खास तौर पर यहाँ पर बाइबल में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, लिखा है कि आदम जो है वो अपनी पत्नी को जान पाया और उससे शेत पैदा हुआ। The meaning of new in the Bible is actually personal relationship. और बाइबल के अंदर जो शब्द न्यू का प्रयोग किया गया या जानना का प्रयोग किया गया, उसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत संबंध या स्थापित होना। Adam had intimate love relationship with Eve, then Seth was born. और आदम का हवा के साथ एक एकांत क्षणों में ऐसा संबंध स्थापित हुआ, जिससे का जो परिणाम था वो शेत हुआ। They discussed everything together. और हर एक बात जो है वो आपस में मिल करके बैठ करके वार्तालाप करते थे या बातचीत किया करते थे। So that is the reason we as Christian, we cannot do anything unless we discuss with Jesus together. ठीक उसी प्रकार से हम जो मसीह हैं, जब तक हम यीशु मसीह के साथ मिल करके बैठे नहीं, बातचीत ना करें, प्रार्थना ना करें, वचन ना पढ़ें, तो उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। We need to have personal relationship with Jesus, saying Jesus is my personal savior. और यीशु मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है, जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। All these people just now, as I mentioned, where Jesus say, I never knew you, they do not have a personal relationship with Jesus Christ. और जब इन तीन प्रकार की कैटेगरी के लोगों के बारे में जिक्र कर रहा था कि ये नहीं जा पाएंगे, उसका बड़ा कारण यही है कि वे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं थे। Remember उसे when I was जानते नहीं teaching थे। about the 7 churches? और याद होगा जब मैं आपको 7 कलीसियाओं के विषय में सिखा रहा था, The church of Laodicea, Jesus said in Revelation chapter 3 verse 20, और लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह 3 उसकी प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार से कहते हैं। Laodicea is a church and believers. लौदीकिया जो है वो एक कलीसिया है और विश्वासी हैं उसमें। Jesus told, Behold, I stand at the door and knock. If anyone opens the door, I will come and eat with him and he with me. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं 3:20 प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार को खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। All are Christians, Laodicean church. और सभी जो लौदीकिया के लोग थे, कलीसिया के, वे मसीह थे। Why is Jesus outside the door? यीशु मसीह द्वार के बाहर क्यों खड़ा हुआ है? Outside their heart. यानी कि दिल के दरवाजे के They बाहर। have never opened the heart for Jesus to come inside. अब कलीसिया तो है, परंतु अभी तक प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिल के दरवाजों को खोला नहीं है। Unless a Christian opens the heart and tells Jesus to come in, then he will come and have fellowship with them. जब तक मसीह लोग अपने हृदय के दरवाजे को खोल करके प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने का आमंत्रण नहीं देते, निमंत्रण नहीं देते, तब तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जो है संगति नहीं कर सकता, Or personal relationship. या फिर उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो सकता। Let me explain to you further in our life. अब मैं आगे आपको हमारे जीवन के बारे में बताता हूँ। Since many of you are from India, I will use your Prime Minister as Narendra Modi. और जबकि आप सभी भारत से हैं, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण उपयोग करूंगा। If I ask you a question, how many of you know your Prime Minister Narendra Modi? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप में से कितने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, तो I assume everybody in this group will say, yes, I know him. तो मैं आशा करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं ये कहेंगे हाँ मैं जानता हूं। We see in the TV, we hear about him, we see in the WhatsApp.
तो हम टीवी में उसे देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, और हम व्हाट्सएप में भी देखते हैं, और बहुत सारी ऐड उनके बारे में आती रहती है। But if I were to go to Narendra Modi and ask, लेकिन अगर मैं नरेंद्र मोदी जी से जाकर के ये सवाल करूं, do you know this person, example Pastor Deepak? तो क्या आप इस व्यक्ति उदाहरण के तौर पर पास्टर दीपक को जानते हैं? What will be his answer? तो उनका जवाब क्या होगा? His answer will be, I don't know him. तो उनका जवाब यह होगा कि मैं नहीं जानता। Is he telling a lie? क्या वो झूठ बोल रहे? He is not telling a lie. झूठ नहीं बोल रहे, He is telling the truth. परंतु सत्य कह रहे हैं। Because Pastor Deepak has not related or have personal relationship with him. क्योंकि पास्टर दीपक उनसे संबंधित नहीं है, ना ही तो व्यक्तिगत संबंध उनसे किसी प्रकार के हैं। So it is the same way here that Jesus is telling. He's not telling a lie, but he's telling the truth that they do not have a personal relationship with him. और ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ झूठ नहीं कह रहे, परंतु ये कह रहे हैं कि उनका कोई व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ नहीं है, इसलिए वे नहीं जानते। So in this point of the 10 virgin, you can see very clearly that where Jesus told that I don't know you is referring to that they do not have a personal relationship with him. और इस बात को आप अच्छे से समझ ले, जहां पर भी ये बात आती है कि मैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्तिगत संबंध के बारे में जिक्र कर रहे हैं या दर्शा रहे हैं कि या ये जो संबंध है उनका यीशु मसीह के साथ है ही नहीं। Next we go to Luke chapter 17 verse 33 to 36. और अगली बात में हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 और 36वीं आयत। This is a very familiar passage for many people. और ये बहुत ही प्रसिद्ध भाग है बहुत सारे लोगों के लिए। Jesus say, whoever seek to save his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जो कोई अपने जीवन को खोएगा वह उसे प्राप्त कर लेगा, यीशु मसीह के लिए, और जो कोई अपने जीवन को बचाने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा। Then he tell us three things here. I tell you, in the night there will be two men in one bed. और तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तीन बातें इस प्रकार से कहते हैं। पहली बात है कि दो मनुष्य एक जो है बेड पर, एक खाट पर सो रहे होंगे। One will be taken and the other will be left. और लिखा है कि एक छोड़ दिया जाएगा और एक उठा लिया जाएगा। Two women will be grinding together. One will be taken and the other left. दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। Two men will be in the field. One will be taken and the other left. और दो मनुष्य एक खेत के अंदर काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा परंतु एक छोड़ दिया जाएगा। Whoever Christian want to live their life or their will, they will not be raptured. जो कोई भी मसीह लोग अपने जीवन से अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वे मेघारोहण में या गुप्तागमन में यीशु मसीह के साथ जाने वाले नहीं हैं। Those who are willing to die for Jesus Christ, they will rapture. जो यीशु मसीह के लिए अपना जीवन, अपना प्राण देना चाहते हैं, केवल वे ही उठाए जाएंगे। Two men in a bed, one will be taken, one will be left. What is the meaning of it? और दो लोग एक बिस्तर पर या एक खाट पर होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? Those who died in Christ, जो मसीह में मरे हैं। there are many people who believe Christ and they died. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीह यीशु पर विश्वास करते थे और मर गए। Bed is a place where people sleep. और खाट वो स्थान होता है जहां पर लोग सोते हैं। In the Bible, those who sleep are called dead. और बाइबल के अंदर जो लोग मर गए हैं, वे जो लोग सो रहे हैं उनको मरा हुआ कहा जाता है कि वे मर गए हैं, या मरे हुओं को सोया हुआ कहा जाता है, मरा हुआ नहीं कहा जाता। The example is Jesus told in the story where Lazarus, Mary and Martha's brother, he was dead. Jesus told the disciple, he's sleeping, I must go and wake him up. और जब प्रभु यीशु मसीह का मित्र लाजर मर गया, जो मरियम और मार्था का भाई था, और जब यीशु मसीह को ये बात पता लगी, तब यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है। So these people are all who died in Christ, but not all will be taken up on the rapture. तो ये लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हुए मर गए हैं, उनमें से हर एक जो है मेघारोहण में यीशु के साथ नहीं जाएगा। Even though their names are written in the book of life, but they all will not be raptured when Jesus comes as the bride of Jesus Christ.
और हालांकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे, परंतु फिर भी उनमें से हर एक जो है मेघारोहण में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाला नहीं है। Okay, two women who will be grinding together are like pastors. और दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, इसका अर्थ है पासवान। Women who are grinding, actually they are grinding the seed to make it as a flour to prepare for the bread. और जो चक्की पीसने का अर्थ ये होता है कि वे गेहूं को डाल करके आटा बना रहे हैं, ताकि जो है उससे रोटी बनाई जाए और दी जा सके लोगों को। They want to take the flour and prepare the food and give it for others to eat. और इस आटे को गूंद करके रोटी बना करके दूसरों को खाने के लिए दी जाती है। So these are pastors in the church who are doing the work of the Lord. ये पासवान है कलीसिया के अंदर, जो परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, जो वचन को पीस पीस करके लोगों को देते हैं। But one will be taken, one will be left behind. और एक तो उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। The faithful pastor who is working truly for God will be taken. The pastor who is also a believer, who is cheating and who is not truthful in his life, he will be left behind. एक वो पासवान जो विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहा है, प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा है अपने जीवन से, वो उठा लिया जाएगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, एक वो पासवान जब उसी शहर में उसी जगह पर काम कर रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा, धोखा दे रहा है या गुप्त पापों में पड़ा हुआ है, वो छोड़ दिया जाएगा। The two men who are working in the field are people like evangelists. और दो व्यक्ति एक खेत के अंदर काम कर रहे हैं, इसका अर्थ है वे जो सुसमाचार की सेवकाई को कर रहे हैं, They are people या like सुसमाचार प्रचारक। apostle, prophet, evangelist or teachers. और ये कोई भी हो सकते हैं जो प्रेरित हैं, हो सकता है सुसमाचार प्रचारक हैं, या फिर जो है क्या नाम है भविष्यद्वक्ता हैं, या और किसी प्रकार की जो सेवकाई है जो बाहर फील्ड में जाकर के करते हैं। They are supposed to go out where God has given them their calling, and they must go out and teach and edify the church. और असल में उन्हें बाहर जाकर के जो काम प्रभु ने उनको दिया है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए करना चाहिए। How they do their work is very important, whether truthfully and faithfully or whether they are lying and trying to do on their own. परंतु वे परमेश्वर के काम को किस तरीके से करते हैं, ये बात बड़ी ही महत्व रखती है, बड़ी ही ज़रूरी है कि वे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के काम को कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या फिर जो है धोखा दे रहे हैं। Truthful person will be taken as a bride of Jesus Christ. और जो सत्य पर आधारित लोग हैं वे यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में ऊपर उठाए The जाएंगे। others in this thing where they are left behind, they are not evil people. और दूसरे जो छोड़ दिए जाएंगे वे दुष्ट लोग तो नहीं हैं। So all the left behind, they will come in the last judgment where their name is written in the book of life, and they will come to life again in heaven. और ये जो छोड़ दिए जाएंगे ये आखिर में जब अंतिम न्याय होगा उस समय आएंगे, यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल नहीं होंगे, परंतु आखिर में जब अंतिम न्याय किया जाएगा ये छोड़े हुए तब आएंगे। You see, in the ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। other passages, Jesus say, "You workers of iniquities." और दूसरे जो भाग हैं बाइबल के, वहां पर आप देखेंगे उनसे कहा जाता है हे कुकर्म के चाहने वाले। Here Jesus didn't tell that these people are bad people or workers of iniquities. और यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, या फिर जो है कुकर्म के चाहने वाले हैं, जैसा कि दूसरे भागों में कहा गया था, वैसा यहाँ नहीं कह रहा है। These are Christians. Their names are written in the book of life, but they are not the bride of Jesus Christ. यहाँ पर जो तीन लोगों का जिक्र किया गया है, चक्की पीसने वाले, खेत में काम करने वाले, या फिर जो है क्या नाम है हम देखते हैं एक खाट पर सोने वाले, तो ये लोगों के बारे में कोई बुरी बात नहीं बोली गई है, लेकिन छोड़ दिए गए हैं। Matthew 16:25, I've already said that earlier to you all, that every Christian must be willing to die for Jesus Christ. मती 16:25 में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर एक मसीह को यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। So now the question, are you willing to die for Jesus Christ? तो सवाल ये आता है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं? You know, many are called, but only few are chosen to be the bride of Jesus Christ. और बहुत सारे बुलाए तो बहुत सारे गए हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं।
So the next one I'm going to go is Matthew 24 verse 3 and 5. और अगली जो हम देखने के लिए जा रहे हैं मत्ती 3 to 24 5. 3 से लेकर के 5। Here the disciples were asking Jesus 3 questions. और यहाँ पर यीशु मसीह से चले 3 सवाल करते हैं। One of the question is, what will be the sign of your coming? और पहला सवाल चेलों का ये था कि तेरे आगमन का चिन्ह क्या है। So Jesus didn't answer their question directly, यीशु मसीह उनके सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, but he gave us a clue of something that we need to note. और यहाँ पर उसने कुछ सुराख दिए जो सुराखों को हमें जानने की जरूरत है, वो उसने बताए। He said, take heed that no one deceive you, for many, I have marked the word many, will come in my name, saying, I am Christ, and will deceive many. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सावधान रहो, और बहुत से तुम्हारे पास मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं वही हूँ, और भरमाएंगे। So Jesus is telling, among Christians, there are many who are false prophet, false Christ, false teachers, and they will come into the church and deceive or cheat many people who are listening to them. और बहुत सारे, यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीह में आकर के कलीसियाओं को शिक्षाओं के माध्यम से भरमाएंगे और धोखा देने की कोशिश करेंगे जो लोग उन्हें सुन रहे हैं। Jesus never tell a lie. He said many will come in Jesus' name. When the people come to the church, they said, I come in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत से उसके नाम से आएंगे। और हम जानते हैं कि कलीसिया में जब लोग आते हैं तब इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु के नाम से हम आपके पास आते हैं। And they will tell that Jesus is Christ. और वे आकर के ये कहेंगे, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, मसीह है। After they tell all these things, they say hallelujah, amen, everything, then only they will deceive you in many ways. और जब वे आमीन कह चुके होंगे, हालेलुया कह चुके होंगे, प्रभु की स्तुति हो कह चुके होंगे, तब आपको धोखा देने का काम आसान हो जाता है। How do they deceive you? अब वे आपको कैसे धोखा देते हैं? In Bible doctrine, बाइबल के सिद्धांतों में, in the way of life that you need to live, और जिस तरीके से आपको अपना जीवन जीना चाहिए, आपके आचरणों में आपको धोखा देंगे। and in our Christian life, what we can do and what we cannot do. और अपने मसीह जीवन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस So मामलों में वे आपको धोखा when देंगे। they deceive us in that matter, then we will be losing our reward and can even lose our rapture during when Jesus comes. और जब वे आकर के अलग अलग प्रकार की बातें बताएंगे और बताएंगे कुछ, परंतु पीछे उनका जीवन कुछ और होगा, तो उन्हें सुनने के द्वारा हम अपने प्रतिफल को खो देंगे। शायद But- हो सकता है कि मेघारोहण से भी रह जाएं। But Jesus give a warning that many will come and many will be deceived. और यीशु मसीह जो है चेतावनी देते कहते बहुत से आएंगे और आकर के भरमाएंगे, धोखा देंगे। Are we in that group? क्या हम उस ग्रुप में हैं जो धोखा दे रहे हैं या धोखा खा रहे हैं? Then Matthew 24 verse 37 to 41, it says about Noah and also about Lot. और उसके बाद जो है मत्ती 24 उसके 24 23 24 में जो है नूहा के बारे में भविष्यवाणी की, नूहा के बारे में बताता है, लूत के बारे में बताता है। Here also Jesus was warning us that just as the day of Noah, it will also be the same as the day when the Son of Man is going to come. और यीशु मसीह कहते हैं जिस प्रकार से नूह के दिन थे या लूत के दिन थे, उसी प्रकार से मनुष्य के समय के दिन होंगे, अंतिम दिन होंगे। You know what will be happening in the church? They will be eating, drinking, marrying and giving in marriage until the day when Noah entered the ark. और क्या आप जानते हैं कि कलीसियाओं में क्या हो रहा है? लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे नूहा के समय में हो रहा था, जब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। जब तक जल प्रलय आकर के बहा नहीं ले गया तब तक पता नहीं लगा। Meaning our priorities in our Christian life supposed to wait for Jesus Christ, but it has changed into activities. और असल में जो हमारा आत्मिक जीवन है और हमारी जो जिंदगी है वो यीशु में आने के बाद परिवर्तित होनी चाहिए, परंतु कलीसियाओं में हो ये रहा है कि बहुत सारे कार्य जो है वहाँ पर किए जाते हैं, कामों में, कार्य करने में व्यस्त हैं लोग। The number 8 is Matthew 24 verse 24 and 25. It says that false Christ and false prophet shall show great signs and wonders,
in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23-24 में जो है वो इस प्रकार से कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, और लिखा है कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। You see, Bible warns us about false Christ, false apostle, false teachers, false prophet. A lot of false is already been written in the Bible that we have to be careful. और बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि झूठे भविष्यद्वक्ता से, झूठे प्रेरितों से, झूठे पासवानों से, या फिर जो है क्या नाम है झूठे शिक्षकों से, और झूठे झूठे लोगों के बारे में बड़ी सारी वो चेतावनी हमें देती है जो लिखी हुई हैं। तो वो बताते हैं कि हमें इस तमाम झूठे लोगों से सावधान रहना है But many जो of us भरमाने का are काम not करते very हैं। careful with that. लेकिन ज्यादातर मसीह लोग जो हैं इस विषय में सावधान नहीं रहते हैं और भरमाए जाते हैं। But here Jesus is telling that if it is possible, they shall deceive the very elect. Of course, it is not possible if the person have a right doctrine in his life. और बाइबल कहती है कि यदि हो सके, यदि संभव हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपके सिद्धांत जो बाइबल के आधार पर है, आप ठीक हैं, सही से पढ़ रहे हैं, तो आप भरमाए नहीं जा सकते हैं। If a person has right doctrine and he has grown in a right according to the Bible in his spiritual life, then he got no problem. अगर कोई व्यक्ति ठीक अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, सही से बाइबल को पढ़ रहा है, सिद्धांत उसके ठीक हैं जो बाइबल के अनुसार हैं, शिक्षाएं ठीक हैं, तो फिर जो है उसे कोई समस्या नहीं होगी और तुरंत ऐसे लोगों को ताड़ लेगा, समझ लेगा। So that is why Jesus say, I have told you before. That means he has given us a warning before he left this earth. और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले हमें चेतावनी दे करके गए हैं इन सारी बातों के बारे में। इसीलिए हमें समझना है और जानना है, इन बातों पर जो है ध्यान देना है। And Matthew 24:9-13 says that that we will be hate. All Christian will be hate by many other people. और मत्ती 24:9 से लेकर के 13 में इस प्रकार से लिखा है कि हमसे नफरत की जाएगी, जो मसीह को Because for मानने the वाले sake हैं, of जानने Jesus वाले हैं। Christ. यीशु मसीह की वजह से सारे संसार के लोग हमसे नफरत करेंगे। So Jesus tell that even many people, many false prophets, and many people who deceive us, and there will be a lot of iniquities, and love of many shall wax cold. He said, those who endure until the end, that means their faith, they save. They protect their faith until the end. They shall be saved. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कि इस संसार में जो लोग होंगे वे आपसी जो है क्या नाम है अपनी भावनाओं से, अपनी लालसाओं से प्रेम करने वाले होंगे और झूठे होंगे और जो है तमाम तरह की बुरी बुरी बातों में फंसे हुए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम जो है अपने आप को जागरूक रखेंगे तो हम जो है प्रभु के बातों में आगे बढ़ते जाए, इन सारे लोगों को हम पहचान लेंगे। Some people, they don't like to be Christian because they know they will be persecuted. और कई दफ़ा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मसीह बनना नहीं चाहते हैं, उसका बड़ा कारण ये होता है कि उन्हें मालूम है सताव से होकर के गुजरना पड़ेगा, इसीलिए वे मसीह से थोड़ा बचते रहते हैं या ऐसे विश्वासी बन करके रहते हैं जो अपने आप को दूसरों पर जाहिर नहीं करते हैं कि वो विश्वासी हैं। This is also like the first one about the centurion. The faith is that important that we have to keep till the end. Because if we are caught, sometimes they ask you to leave Christianity and we will leave you. If they say yes and go, then they have deceived Jesus Christ. They have betrayed Jesus Christ. और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपने बताया था पहली बात कि जो सूबेदार था उसका विश्वास जो है इतना मजबूत था, तो अगर आपका विश्वास मजबूत रहेगा तो आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो लोग जब आपसे आकर के कहेंगे अगर आप मसीह को छोड़ देंगे तो हम आपको जिंदा छोड़ देंगे, तो बहुत सारे लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं और जो है अपने विश्वास से मुंह कर जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। We don't need to deny Jesus Christ in front of anybody. और हमें यीशु मसीह का किसी के सामने इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। Meaning we don't need to fear death. इसका मतलब अर्थ है यह है कि हमें मृत्यु से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। You remember Peter denied Jesus 3 times before the cock crew?
आपको मालूम है कि यीशु मसीह का पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। इससे पहले कि मुर्ग बांग दे 2 बार उसने 3 बार इनकार कर Why दिया। did he say, I don't know Jesus? और क्यों उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता? Because if he say he knows Jesus, he also could be crucified. क्योंकि अगर वो ये कहता है कि वो यीशु को जानता है तो शायद हो सकता है उसे भी पकड़ के क्रूस पे चढ़ा दिया जाता They will put him to death. और शायद मार देते। So are we going to deny that we know Jesus or we do not know Jesus? तो क्या हम यीशु मसीह का इनकार करेंगे कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते, या हम ये कहेंगे कि हम यीशु मसीह को जानते हैं? If we deny, then we shall not be safe. और अगर हम उसका इनकार कर दें तो हम बचाए नहीं जाएंगे। Then Matthew chapter 24 verse 45 to 50, it says that we must be doing the work of the Lord faithfully. और उसके बाद मत्ती 24 उसका 45 से 50 में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के काम को विश्वास योग्यता के साथ करें। God has given us a task to do in this world, in our church or in our place, some work, and we must do it faithfully. When He comes, if we see we are faithful, we will rapture. तो चाहे हम कलीसिया में करते हैं या कोई भी काम हमें करने के लिए दिया जाता है, उस काम को हम विश्वास योग्यता के साथ करें। यदि हम अपने कार्यों को जो मसीह के लिए करते हैं या कलीसिया में करते विश्वास योग्यता के साथ करते हैं तो निश्चय हम उठाए जाएंगे। So when Jesus come and in an unknown time like a thief, at that point some Christians who are not faithful in their work or in their life doing sin, they will be left behind. और जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे उस समय यदि जो सेवक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, वे अगर विश्वास में मजबूत नहीं रहेंगे, जो काम उन्हें दिया गया उस काम को करते हुए ठीक ढंग से नहीं पाए जाएंगे तो वे पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। So I want to give you the examples of those who will rapture. अब मैं आपको उनके नमूने या उदाहरण बताऊंगा जो उठाए जाएंगे। I have told you what Jesus have said, that those who didn't rapture, और अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि यीशु मसीह ने जो उठाए नहीं जाएंगे यानी बादलों पर नहीं जाएंगे उनके विषय में क्या these कहता है वो अभी notes तक I मैंने will बताया give you आपको। and you have to go and read yourself. और नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आप अपने घरों में जाकर के इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। It is in English. If you don't understand, then you have to call up Pastor Deepak to ask. ये अंग्रेजी में है, परंतु यदि आप हिंदी में मांगते हैं तो फिर आपको पास्टर दीपक को बुलाने की जरूरत Who है। are the people who will rapture? अब लोग ये लोग कौन होंगे जो उठाए जाएंगे? मेघारोहण किसका होगा? What does the Bible say? बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? So I will give you in a very spiritual mind. If you open your spiritual eye, you will see that. तो आपको जो है एक आत्मिक मन मैं आपको दूंगा, और अगर आप अपनी आत्मिक आंखों को खोल करके रखेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। Old Testament people were waiting for the Messiah, जो पुराने नियम के लोग थे वे मसीहा का इंतजार कर रहे थे, for Jesus to be born in this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हो, ये बाट जो रहे थे। New Testament Christians are also waiting for the Jesus Christ's second coming. और जो नए नियम के जो मसीह लोग हैं वे भी प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आगमन का इंतजार कर रहे हैं। Israelites were waiting for the Messiah. Christians were waiting for Jesus' second coming. और जो इजरायली हैं वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, मसीह लोग जो हैं वो यीशु मसीह के आगमन का बादलों पर इंतजार कर रहे हैं। So in the Bible, those who saw Jesus in the first coming, if you and I have the character like them, we will be raptured the same way, or we will see और Jesus. अगर मेरा और आपका स्वभाव या चरित्र जो है उस पुराने नियम के बाट जोड़ने वाले लोगों के समान होगा तो हम यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। You know, Mary is a क्या आप virgin जानते while हैं? she gave deliverance for Jesus Christ, virgin, क्या pure. आप जानते हैं मरियम के बारे में? मरियम जो यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी और वो किस तरीके से तैयार थी। Joseph was a just man or righteous man. और यूसुफ जो कि एक धर्मी पुरुष था, बाइबल उसके बारे में ऐसा कहती है। The shepherds, they were keeping watch over their flock by night. The pastors are doing their work even at night. और रात्रि के दौरान जो चरवाहे थे वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। ये पासवानों को दर्शाता है, पासवान जो जागरूक होकर के अपनी कलीसिया की सेवा कर रहे हैं। If you have a character who is pure in heart, like just man and like doing the work of the Lord, you will see Jesus
at the rapture. और अगर आपका जो चरित्र है वो साफ और स्पष्ट है और आप हृदय में शुद्ध हैं, तो जो धर्मी व्यक्ति है उसके समान अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह को देखने पाएंगे। So, in the same way, you can see Simeon, who is a just and devoted man, and Hannah, a devoted saintly woman. और ठीक उसी प्रकार से आप शिमोन नाम के व्यक्ति को बाइबल में देखते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो मंदिर में याजक की पदवी पर था, वो धर्मी था और भक्तजन था और यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जो रहा था। उसी प्रकार से हन्ना नाम की स्त्री को आप देखते हैं, जो कि विधवा थी और मंदिर को न छोड़ती थी और यीशु मसीह का जो आने का वायदा था उस वायदे की ओर अपनी आंखें लगाई हुई थी। So, there were wise men from the east who are Gentiles, wise men seeking God, other people like us. और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उन बुद्धिमान पुरुषों को जो पूर्व से आए थे और ये जो है अन्य जातियों को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, जो यीशु मसीह को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, तो एक लंबी यात्रा करके जो है यीशु मसीह को देखने के लिए पहुंचे। So, basically, if you see, these are the people who saw Jesus Christ when Jesus was a child or like a baby. तो बुनियादी तौर पर आप इन लोगों को जिनके मैंने नाम लिए हैं देखेंगे जब यीशु मसीह का आगमन हुआ, प्रथम आगमन पृथ्वी पर बालक के रूप में, तब उन्होंने जो है यीशु मसीह को देख पाए। So, basically, उनकी उस धार्मिकता sacrifice की वजह and से या उनके चरित्र की वजह से। basically sacrifice, commitment are what is needed to walk pleasingly unto the Lord. Faith also is required. और मुख्य रूप से जो है हमें जो बलिदान की आवश्यकता पड़ती है वो ये होता है कि हम जो है विश्वास योग्यता के साथ चलें। So the next one we are going to see those who wanted to see Jesus or rapture but they didn't. और अगली बात है कि जो यीशु मसीह के मेघारोहण को देखना चाहेंगे परंतु देख नहीं पाएंगे, वे कौन हैं? King Herod, he wanted to see आप Jesus. जानते हैं राजा हेरोदेश के बारे में, यीशु मसीह से मिलना चाहता था, He देखना told the चाहता wise था, man, go बाइबल and बताती seek है। and after you find come and let me know. और उसने जो है उन बुद्धिमान पुरुषों से कहा जो यीशु को देखने के लिए आए थे कि जाओ जाकर के ढूंढो, अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना। So if you and I as a Christian want to be king of our life and not Jesus Christ to be the king of our life or Jesus, then we cannot see Jesus at the rapture. तो राजा हेरोदेश के समान अगर हम अपनी जिंदगी के स्वयं राजा बने रहना चाहते, यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना नहीं चाहते, तो आप ये स्मरण रखिए कि आप यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे जब वो मेघारोहण में आएगा। Jesus has to be the king of our life, then we will rapture. और यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा होना चाहिए, तभी हम उसको देख सकते हैं। Next, you can see the innkeeper. The person said there is no room for Jesus to be born. और आप उसके बाद जो है उस व्यक्ति को देखेंगे जो सराय का जो है रखवाला था या सराय का मालिक था। जब यीशु मसीह को कहीं जगह ना मिली तो सराय में जब वे गए If तो Jesus is वहां पर not जो है born in our वहां heart, पर then we will not be able to see him. वहां पर जो है उस सराय के रखवाले ने या मालिक ने इस प्रकार से कहा कि यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर स्थान नहीं है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं उसके समान जो यीशु मसीह के लिए अपने हृदय में स्थान नहीं रखते हैं, तब भी आप यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। The last one is the Roman soldiers who had the instruction from Herod to go and kill 2 years and below all the children. और अगली बात, अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं सैनिक। जब राजा हेरोदेश की तरफ से आज्ञा निकली जाकर के 2 साल तक के बच्चों को जो है मरवा डालो, तो वो सैनिक गए और जाकर के 2-2 साल के बच्चों को मरवा डाला। This is another matter which is very serious now in our life. ये एक और विषय है जो हमारे जीवन के अंदर बड़ा गंभीर विषय है। Because if you see in our Christian life, we hear a lot of things from the pastors, from the church order and our life decision, not from the Bible. और यहाँ पर हम जो है ऐसे सैनिकों के समान लोग बन जाते हैं जो दूसरों के निर्देशन पर चलते हैं, अपने पासवान को देखते रहते हैं, कलीसिया के अंदर आने वाले लोगों को देखते रहते हैं, या इधर-उधर से चीज़ों को सुनते रहते हैं, उसी पर मनन करते रहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है उसे उठा करके नहीं देखते। We must take the orders from the word of God. तो जो क्रम है या जो बुनियाद है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर आनी चाहिए हमारे जीवन में।
Okay, be prepared according to the Jesus parable of the 10 virgin. तो यही आपसे कहेंगे कि यीशु मसीह ने जो 10 कुंवारियों का नमूना या उदाहरण दिया उसके आधार पर अपने आप की तैयारी करें, Having the Holy Spirit in them. अपने अंदर पवित्र आत्मा रखें। Okay, this one all I let you all to read. Okay, okay, this is not important. I'll give you this one. All right. I want to end up here with this topic of how to get prepared. क्या मैं समाप्त करना चाहूंगा ये जो विषय है कि किस तरीके से तैयार रहें या तैयार कैसे रहें में। So I'm sure you understand what is the true gospel. तो मुझे पक्का यकीन है कि आप समझ गए होंगे सच्चा बचाए जाने वाला सुसमाचार क्या है, How to grow in Christ. मसीह में किस तरीके से बढ़ें, उन्नति करें। Then how to believe the gospel correctly, that is repentance before belief, and after that the second repentance is for overcomers. और किस तरीके से जो है विश्वास करें, असल में पहले मन फिराएं उसके बाद विश्वास करें, और उसके बाद दूसरा भी जो है मन फिराना होता है जब हम कलीसिया में आ चुके होते हैं तब। And I have told you what Jesus has warned us, that those who would not rapture. और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि यीशु मसीह ने जो उठाए नहीं जाएंगे, जिनका मेघारोहण नहीं होगा, उनके विषय में क्या चेतावनी दी। And given example in the Bible of who will rapture and who will not, or with comparing with the first coming of those who saw Jesus as a baby and those who didn't, who want to see but didn't see Jesus as a baby. और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किनका जो है मेघारोहण होगा और किसका मेघारोहण नहीं होगा, इसके आधार पर कि प्रभु यीशु मसीह का जब बालक के रूप में प्रथम आगमन हुआ तो किन लोगों ने उसे देखा और कौन लोग उसे नहीं देख पाए, कौन लोग इच्छुक थे और नहीं देख पाए, और कौन लोग इच्छुक थे और देख पाए। So Maranatha, Jesus is coming back again for you and me. तो मैं यही कहूंगा, मारनाथा अर्थात यीशु मसीह जल्द आने वाला है। So next class we are going to see, are we deceived in our Christian life? अगली कक्षा में हम देखेंगे क्या हम अपने मसीह जीवन में धोखा दिए जा रहे हैं। Almost similar to what I have teach you just now, how to get prepared. और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि तैयार कैसे रहें, इसी के आधार पर कुछ समानांतर चीजें होंगी जो मैं अब अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। But there are many additional things to check and see whether we are in a wrong way of Christian life. परंतु ऐसी बहुत सारी और भी चीजें उसमें जुड़ जाएंगी कि हम अपने मसीह जीवन में ठीक हैं या नहीं हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित होंगी जो आपको बताएंगी कि आपका मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। Okay. So I would like to stop here, and then if there is any question you can ask me after the class, and then thank you and God bless you. और इसी के दौरान यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप क्लास खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं। प्रार्थना के साथ हम लोग समाप्त करेंगे, और जिनको सवाल पूछना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं पूछना है अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खास करके प्रभु से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे आज की कक्षा के लिए। आज जो हमने सीखा प्रभु की बातों को, परमेश्वर से जो हमने चीज़ें सीखी हैं, और पास्टर पॉल के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु और ज़्यादा बरकत दे, आशीष दे, और इनके जीवन में और अधिक प्रभु प्रकाशन दे, और प्रकाशन में हम सब मिलकर के लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। मैं निवेदन करूंगा भाई संजय अपनी आवाज़ उठा करके एक छोटी प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे, और विशेष करके पास्टर पॉल के लिए प्रार्थना करेंगे, और इस समय जितने जुड़े हुए हैं भाई बहन उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, इस महान प्रभु परमेश्वर प्रकाशन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपके दास पास्टर पॉल जी के द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हम तक पहुंचा प्रभु परमेश्वर। और खुदावन प्रभु परमेश्वर, आपके दूसरे आगमन के विषय में प्रभु कौन उठाया जाएगा, कौन प्रभु परमेश्वर रह जाएगा प्रभु परमेश्वर, इन सब के विषय में प्रभु जी आज प्रभु परमेश्वर प्रभु हमने आपकी वाणी सुनी प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम इस ग्रुप में प्रभु परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु जूम पे जितने भाई बहन हम जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम प्रभु परमेश्वर प्रभु सबको प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं, सबको प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र हाथों में ले प्रभु परमेश्वर। और खुदावन प्रभु परमेश्वर प्रभु आपका ये खरा उपदेश प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंच रहा है प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम में से कोई भी प्रभु जी इससे अपने मुंह को ना फेरे, अपने कानों को बंद ना करे प्रभु। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु, हमें इसे मानने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और प्रभु परमेश्वर प्रभु जैसा प्रभु परमेश्वर प्रभु
प्रभु परमेश्वर सिखाया जा रहा है प्रभु परमेश्वर उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए और अपने मित्रों में प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसियाओं में इसे शेयर करने के लिए प्रभु हमें से हर एक की सहायता और मदद कर हमें अनुग्रह दे ताकि प्रभु परमेश्वर हम लगातार प्रभु जी आपके खरे उपदेश को प्रभु पकड़े रहें और इसे चलते रहें प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आप अपने दास को प्रभु परमेश्वर पास्टर पॉल जी को प्रभु बहुत आय से यूं ही इस्तेमाल कीजिए और अगली कक्षा में प्रभु परमेश्वर प्रभु जी जब प्रभु परमेश्वर हम इस विषय में प्रभु परमेश्वर और गहराई से प्रभु उनसे सुनेंगे तो हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर और ज्यादा प्रभु अपने प्रकाशन से और अपने आप से उन्हें और ज्यादा भर दीजिए प्रभु जी। राजाओं के राजा हम आपको धन्यवाद और महिमा और आदर देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। आमीन।